معاون اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اوان پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ مخالف پہ تنقید، مخالف کو ان ایشوز سے اختلاف، یہ جمہوریت کا حسن ہے اور سیاست کی روح ہے۔ لیکن شاہی خاندان کے آداب سے واقف، جمہوری رویوں سے عاری راج کماری صاحبہ سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ انہیں کوئی ایسی جمہوریت پسند آئے جس میں وہ اقتدار میں نہ ہوں اور ذل سبحانی، آئین کی پامالی، قوانین کی خلاف ورزی اور عوام کے خون پسینے کی کمائی کو ڈکار مار کے یو کے میں بیٹھے ہوں، لنڈن میں بیٹھے ہوں اور ان محلوں میں بیٹھے ہوں جہاں کیلبری کوئن صاحبہ نے سپریم کورٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا اور میڈیا کی سکرینوں پہ بار بار یہ بات دہرائی تھی کہ میری پاکستان میں کیا، پاکستان سے باہر بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ تو آج ماشاءاللہ سبحان اللہ اسی جائیدادوں کے محل میں وہ اور ان کے خاندان کے دیگر افراد جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور ایک منتخب حکومت کو جو چور دروازے سے نہیں، ڈاکہ زنی سے نہیں، کسی گٹھ جوڑ سے نہیں، جو صرف اور صرف 22 سال کی عمران خان صاحب کی جدوجہد اور دن رات کی محنت کے بعد پاکستان کے عوام کا ان پہ اعتماد اور اس گلے سڑے نظام کے ستائے ہوئے شاہی خاندان اور نسل در نسل غلامی کا شکار پڑھے لکھے باشعور لوگوں نے اس جماعت کو اور جاتی امرہ کے محلوں کے اندر نسلیں پروان چڑھانے والے خاندان کو سمندر برد کیا اور عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں وزیر اعظم پاکستان منتخب کیا۔ محترمہ فرما رہی تھی کہ ایم پی اور ایم این ایز حلقے میں جانے سے گھبرا رہے ہیں، وہ حلقے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو محترمہ ہمارے لیڈر کا دامن شفاف اور صادق اور امین کا ٹائٹل پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ان کو یہ سرٹیفائیڈ کیا ہے کہ وہ صادق اور امین ہے، اور دوسری طرف سب سے بڑی عدالت نے سرٹیفائیڈ جھوٹا، دغا باز اور کرپٹ سرٹیفکیٹ جس کو ملا ہے وہ ماشاءاللہ آپ اور آپ کا خاندان ہے۔ ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز اپنے حلقوں میں جانے سے کیوں گھبرائیں گے؟ انہوں نے کیا چوری کی؟ ہماری لیڈرشپ نے کہاں انہوں نے ٹی ٹیز لگائیں، کہاں انہوں نے منی ٹرانسفرنگ اور منی لانڈرنگ کی، کہاں انہوں نے اپنے خاندان کے نام سے اثاثے بنائے، اپنے بچوں کے نام سے انویسٹمنٹ کی، گوشت کمپنیاں بنائیں اور جائیدادیں پاکستان سے باہر بنا کے، کاروبار پاکستان سے باہر بنا کے وہ قانون کو، پاکستان کی عدالتوں کو نہ اشتہاری ہیں، نہ مفرور ہیں، نہ مطلوب ہیں۔ جو نسل در نسل کرپشن کی ٹرافیاں اٹھانے کا اعزاز یہ آپ کے خاندان کو حاصل ہوا ہے اور 35 سال سے مسلسل آپ نے یہ کرپشن کے میڈل اپنے گلے میں ڈالے ہیں۔
इमरान खान के कंधों पे ना कोई ऐसा बोझ है और ना इमरान खान ने कहीं पे भी अकबरा परवरी और अपने ख़ानदान को नवाजने के लिए कोई पॉलिसी बनाई। हाँ, इमरान खान ने ये ज़रूर किया, उसके जुर्म का हमें पता है कि उसने ये जुर्म किया कि उसने दो ख़ानदानी निज़ाम को अवाम की ताकत से तहस नहस किया और उसने जो बारियां रखने वाला वो जमहूरी कल्चर था जिसका नाम आपने इक़्तिदार का नाम जमहूरियत रखा हुआ था कि अगर इक़्तिदार में है तो जमहूरियत है, इक़्तिदार से बाहर है तो वो हुकूमत आपको पसंद नहीं। 2.5 साल बाद आज आपको याद आ रहा है कि ये धांधली ज़दा निज़ाम और हुकूमत है। 2.5 साल क्या आप बताना पसंद करेंगी कि आप बेल पे होते हुए आपने अपना ट्विटर क्यों बंद किया? आपने जाती उम्रा के महल में बैठ के खामोशी क्यों इख्तियार की? आपने और आपकी कनीज़ों ने जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से लेके पिछले चंद माह तक खामोशी का रोज़ा क्यों रखा? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस कौम से वादा किया है कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस में रिफॉर्म्स लाएंगे। उसके लिए वो कमेटी बनी, कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी, आपने और आपकी जमात ने और ये 11 जमातों का जो बेरोज़गारों का टोला है, जो 11 जमातों का मुतंजन बना हुआ है इस वक्त, उसने उन रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल जो फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को इंश्योर करने के इनिशिएटिव्स थे उनसे लाताल्लुकी की। तो एक तरफ आप कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, तो ये कौन सी हुकूमत है जो अपने दौरे इक़्तिदार में सेनेट के इलेक्शन के अंदर वाज़िया अक्सरियत, आपको पता है कि पीटीआई का हक है और वो हमारी असेंबलीज़ के अंदर, इकाइयों के अंदर और नेशनल असेंबली के अंदर जो अददी अक्सरियत है वो इंशाल्लाह हम सेनेट में अपनी अक्सरियती जमात होने के लिए जो आइनी और कानूनी पैरामीटर्स हैं उनके तहत उस इलेक्टोरल प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो इमरान खान ने उस इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए शो ऑफ हैंड का जिक्र किया तो आप बिलबिला उठी हैं। आपकी तड़प इस बात को जाहिर कर रही है कि जिस छांगा मांगा की सियासत का आगाज़ आपके ज़िले सुबहानी ने किया था, वो छांगा मांगा की सियासत इमरान खान शो ऑफ हैंड के ज़रिए दफन करने जा रहा है। जो चमक की सियासत ब्रीफ केस लेके आपके दौर में लोग नहीं भूले हैं, वो चमक की सियासत को वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा के लिए पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ से गायब करने का जो ऐलान किया है, और जैसा कि आप जानती हैं कि आपके दौर में जो अदारों को यरगमाल बना के अदालतों का आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को या अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश की है, तो मोहतरमा इमरान खान के अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी टेप मार्केट में मौजूद नहीं है जिसमें वो जजिस को कह रहे हों कि आपने फ़लाँ को सज़ा देनी है और फ़लाँ को बरी करना है। ये एजाज़ भी आपके चचा मोहतरम के हिस्से में आया था और वो टेपें मार्केट में
सब के कानों में उनकी गूंज सुनाई दी थी। तो अदारों को बाख्तियार बनाना, अदारों को ताकतवर बनाना, आइन और कानून के ताबे करना, ये इस हुकूमत का अज़म है। और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म की क़यादत में हम अदारों को, वो नैब हो, वो अदलिया हो, वो हमारे दीगर तमाम पार्लियामेंट समेत अदारे, हम आइन और कानून से बाहर कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये वज़ीर आज़म का एक अपनी विजन की उन्होंने अक्कासी की और उसकी डेलिब्रेशंस और उसकी गाइडलाइंस और उसके साथ जुड़े एक आइनी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े पे दस्तक दे के वो रहनुमाई सीख करने के लिए उन्होंने अपनी उस विज़न को अवाम के सामने रखा। ये सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है, उन्होंने हमारी रहनुमाई करनी है कि इस हवाले से हमारी हुकूमती या कानूनी और आइनी तरजीहात क्या होनी चाहिए। जो आज आपका रोना धोना, आओ बका और एट स्यापा वो इस बात की अक्कासी करता है कि आपने जो पार्टी के अंदर बगावत है वो चैन नहीं लेने दे रही। मियाँ जवेद लतीफ़ का बयान इटसेल्फ आपकी सफ़ों के अंदर, जो आपके अपने MNAs और MPAs के अंदर इस वक्त इज़्तिराब की लहर है, उसकी निशानदेही करता है। आप अपना घर संभालें, आप अपने उन मेंबरान की फ़िक्र करें जो शाही ख़ानदान के मुतासरीन हैं और जो आपसे छुटकारा हासिल करने के लिए हमारे साथ रवाबत में है। और हमने आपसे वादा किया हुआ है कि हमने आपको सरप्राइज़ देना है और वो भरपूर सरप्राइज़ आपको मिलना है। और आपको समझ आ जाएगी कि हमने शो ऑफ हैंड अपने अरकान के लिए किया है या हमने रूल ऑफ लॉ के लिए किया है। क्योंकि ये जुर्रतमंदाना फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने किया था कि अपनी जमात से 20 सिटिंग MPAs को निकालना और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजाज़ है। और आपकी ये गिदड़ बबकियाँ, आपकी ये फिल्मी शूटिंग और आपकी ये सारा दिन थिएटर लगा के मीडिया की स्क्रीन पे अदाकारी किसी काम नहीं आएगी। क्योंकि आपका चेहरा आपकी ज़बान का साथ नहीं देता। आपका चेहरा बता रहा है कि आप मायूस हैं, आपका चेहरा बता रहा है कि आपकी अपनी जमात में तोड़ फोड़ हो रही है और आपका चेहरा बता रहा है कि आपके इस बयानिए का कोई ख़रीदार नहीं है और कोई भी आपको किसी जगह भी कंधा देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि लाहौर का जलसा जो है वो आपके लिए एक डरावना ख्वाब बन गया है और वो आपके ज़िले सुबहानी ने जो खाली कुर्सियों से वीरान रात में तबादला ख्याल किया है, वो यकीनन लाहौरियों का आपको वो मौसर जवाब है जो आपको चैन नहीं लेने दे रहा। तो इंशाअल्लाह आपको पहले भी नाकामी हुई है, इसके बाद भी आपको नाकामी होगी। जो आज की हमारी कैबिनेट, क्योंकि हमारा आपका काम है वावेला करना, औबका करना, पंजाब हुकूमत का और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का काम है कि जाती उम्रा के महलों के बाहर रहने वाले हमारे पिसे हुए तबकात जो हैं उनके हकूक़ की पासदारी करना और उनके लिए तमाम बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना। हम अपना काम करते जाएंगे, आप इसी तरह रोना धोना मचाते हुए इसी तरह मुसलसल आओ बका और फरियाद करती रहेंगी। हम अपने कदम नहीं रोकेंगे और ना ये काफ़िला रुकेगा। इंशाअल्लाह ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और हम पाकिस्तान के अवाम की अमंगों की तर्जमानी करते हुए उनके तमाम जायज़ मसाइल का हल तलाश करेंगे। आज का जो अहम इजलास कैबिनेट का हुआ है, इसमें जो
18 नुकाती एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी गई है। उसमें पंजाब कैबिनेट के सामने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खैर सगाली के जज्बे का इजहार करते हुए, जो इससे पहले 1979 में 30 साल की जो लीज़ दी गई थी 1568 एकड़ अराज़ी, और जहाँ पे उस वक्त के हमारे हुक्मरान अरब अमारात के, उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, स्कूल्स बनाए, उसको आबाद किया, तो हुकूमत पंजाब ने उसकी फर्दर लीज़ का आज फ़ैसला किया है। और ये चोलिस्तान रहीम यार ख़ान में सदर शेख ज़ैद बिन अल नहयान को अरब अमारात के जो हैं उनको ये अराज़ी जो है अगले 20 साल के लिए सरकारी लीज़ पे एक्सटेंड कर दी गई है, उसमें तोसी कर दी गई है। इससे कैबिनेट जो है वो चूँकि दो तरफ़ा ताल्लुकात हमारे जो UAE के साथ हैं, हमारे लाखों मज़दूर मेहनत कश वहाँ काम कर रहे हैं, जो अरबों रुपए का ज़र मुबादला पाकिस्तान कमा के भेजते हैं, तो ये एक खैर सगाली का इक़दाम है जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मजबूत होंगे। इसके अलावा जो अहम तरीन लाहौर का प्रोजेक्ट, क्योंकि लाहौर जिन्होंने सिर्फ़ सियासी किले के तौर पे इस्तेमाल किया अपने कारोबारी मफाद के लिए, तो लाहौर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खुसूसी फिरदौस आशिक अमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इसी के साथ खबरों से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।